Everyone related with this process is curious to know the best practices to be adopted in view of various do's and don'ts of COVID-19. On behalf of all of you, I would like to welcome and introduce our eminent guests and speakers in the webinar. First of all, I would like to welcome Honorable Chairperson CCRT, Dr. Hemlata S. Mohanji, who will be chairing the webinar. She is an educationist, culturist, environmentalist, language lover, literary enthusiast, philanthropist, and prolific writer. She has done BSc LLB from Banaras Hindu University, Varanasi, and MA in Hindi and PhD from Kashi Vidyapeeth, Varanasi. She had been director and principal of Delhi Public School, Bokaro. She was the chairperson of Jharkhand State Commission for Women. She has been member of Film Certification Board, Government of India. She writes poems and her interest in literature is serious. She holds a senior diploma in classical music also. She received the highest National Teacher Award by President Dr. APJ Abdul Kalamji for her contribution to education. She has made her place in 25 powerful women of the country based on survey conducted by prestigious Fame India magazine this year. Recipient of CBSE National Teacher Award by HRD Minister, Lifetime Achievement Award received from Honorable Governor of Goa, Gandhi Samman, and many more. Dr. Hemlata ji has recently created a song on Corona, and in her guidance, CCRT has developed this as Jai Ghosh with the help of eminent artists and scholarship holders of CCRT. By using digital, interactive, and online mode of communication, please have a glimpse of Jai Ghosh. So friends, you have seen that how during COVID-19, without actually going to these CCRT scholarship holders, we have developed such a wonderful production. Now I would like to introduce our panelist speaker for today. Utpal Bor Pujari ji is a national award-winning filmmaker and critic. He won the National Award for his Assamese feature film Issue in 2017 and earlier for the Best Film Critic in 2003. He has made several acclaimed documentaries such as Memories of a Forgotten War, Songs of the Blue Hills, prepared for CCRT, For a Darbar of the People, Soccer Queens of Rani, and Mayong, Myth, Reality, out of which the first two were selected to the Indian Panorama in the International Film Festival of India. His films have been screened in many prominent film festivals across the world. He is a former journalist and has written on politics, society, cinema, culture, art, literature, and sports. Our second panelist for today is Shri Sunil Shukla ji, a graduate from the Indian Film and Television Institute, Pune. He is a specialist in documentary film production on arts, culture, and social development. He directed a documentary film, Rahas, the Ras Leela of Chhattisgarh, for CCRT. He is founder of the Art Design Teachers Forum. Our third panelist is Shri Kali Prasad Maurya ji, trained in singing from Gandharv Mahavidyalaya, directed and played lead role in dozen plays such as Ban Bhatt autobiography, Putra Ramcharitam, associated with Bikram Singh ji, renowned filmmaker, worked as a reporter with G News, along with working as associate director with India TV. He writes poems and stories. Two documentary films, Karinga and Videshya, have been directed by him for CCRT. Currently, he is director, Vihan Foundation.
Before inviting Shri Bor Pujari ji, we would like to show you the glimpse of his film, Songs of the Blue Hills, made for CCI. और पुजारी जी, इस चर्चा का आरंभ मैं आप ही से करना चाहूंगा। आपने ये बहुत ही खूबसूरत वादियों में जाकर नागालैंड में हमारे लिए फिल्म बनाई और बहुत ही सुंदर तरीके से इसका शूटिंग, इसका संपादन, एडिटिंग किया। ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड ये सिचुएशंस ऐसी हैं, इसमें इस तरह की फिल्म बनाना किस हद तक संभव हो पाएगा और हमें अपनी टेक्नोलॉजी में, हमारी मेथोडोलॉजी में किस तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे? नमस्कार सभी को। First of all, thank you to CCRT, especially to the chairperson and the director for putting me in this panel and this important webinar. And so, I'm hello to my co-panelists, Mr. Shukla ji and Kali Prasad Moria ji. I think this topic itself is quite important, because now the way we make films, I mean, बशीष जी ने बताया कि CCRT का जो काम है, collecting documents, documenting, folk culture, literature, collecting old photographs, तो ये बहुत सारा ऐसा documentation का काम है। लेकिन मैं सिर्फ फिल्म मेकिंग के बारे में ही थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है, उसके on the basis of that I will speak a few words. The way we make films will completely change now, I guess. You see, in the whole world, filmmaking has stopped last month. And if we go to the fiction filmmaking, the zone of fiction filmmaking, which includes all the big budget films from all over the world, plus in India in many languages, from Bombay to East and Northeast. So that whole scenario will change because filmmaking is not possible with physical distancing. Fiction filmmaking. In documentary filmmaking, we actually can work with a smaller crew, depending on the subject, depending on the location. Many of the subjects, especially in the cultural field, we can think of smaller crew. But at the same time, it's not, when you shoot, it's quite difficult to maintain physical distancing, like I said. Because we have to have a director, we have to have a direction team, we have to have a camera team where there will be a camera caretaker, there will be a focus puller, there will be a cameraman, cinematographer, then there will be the sound recording team, and there will be people who handle the production. So it's a team which moves, and you cannot. For example, suppose I am making, during the making of Songs of the Blue Hills, I had a technical crew of 5 people, excluding me, and plus there were 2 officials from CCRT. One person was handling the production and one was doing the still photography. So it was like almost 8 people plus the driver. And we had a kind of van which we had hired and moved around all across. But now we cannot move in one vehicle if we have 8 people, because we have to maintain certain precautions. So that's that. From the very beginning of how to travel will change. And then when you go another place, because of COVID,
till a vaccine is found, I think when you go to another place, even if travel is open from one state to another, when you go to the place, I think there will be problem of there may be problems of quarantine and all those things for a long times to at least for next many months. As I can see it. So I don't know exactly how we can proceed, even if shooting is possible, in a technically with a smaller crew. Suppose I go to make Songs of the Blue Hills now to Nagaland. I mean, now means suppose the restrictions have been lifted, but the COVID threat is still there. So how do I move there? How do I go and how do immediately the budgets will have to change? I have to hire one vehicle. I might have to hire 2 or 3 vehicles. Then again, earlier we used to share rooms. Maybe now everybody will prefer a single room for his or her own safety, when we stay in a guest house or hotel. And then while going to the documentation, like we start with groups of musicians. There were groups which were, we visited the villages where there were groups up to 14, 15 people. And also some people came down from the hills to enable us to shoot in Kohima. I saw it maybe 15, 16 such groups. But now, it will be difficult to move such a huge group to another place, from one place to another, from the village to a town, or even if we go, whether people will gather at one place to enable a team of outsiders to, film. So these technical problems, I see these are the main challenges which will come in front of filmmakers, especially documentary filmmakers in the coming times, till we get a vaccine, And moral, and also I think now it will have to become mandatory that every team of documentary filmmaking or every documentation team will have to have a doctor in the team. I mean, if not a doctor traveling from the place where the team is going, but at least maybe a doctor from the local environment. That, because you have to be very careful now. Every day you have to check the temperature, and in case of anyone falling, even showing even minor symptoms of even a normal cold. We don't know even if normal cold, whether it's COVID or a normal usual seasonal flu. So we have to be very careful. So those medical all the medical help will have to be there around you, because if somebody falls ill, somebody feels unwell, you cannot suddenly look for a doctor in a remote place. And most of this documentation work, of course, happens in remote places, not in cities and towns. So I think these will be the main challenges in front of us when we go ahead for documentation in the coming months. But what I can see is that now organizations like CCRT might consider prioritizing what needs to be documented urgently, and where we can document cultures and people which require smaller numbers of performers. For example, CCRT might consider now to document at the initial stage when the lockdown is lifted, to document people who are experts in certain cultures, like a singer, like a folk singer, like a folk artist, like single person, not as groups. That will be maybe a starting point for now. So I think for my initial comment, I think that's all I would like to say, and I would like to, participate in the discussion at a later stage as I hear the other panelists and both the CCRT director and chairperson. Thank you, Pujari ji. To know about what CCRT was doing as far as collection of resources and documentation is concerned in the pre-COVID era, and now during the COVID, what we are doing and what will be our strategy post-COVID, I will request our Honorable Chairperson, Hemlata Mohanji, to brief us about the success story of CCRT. COVID-19 एक ऐसा सडन
एक ऐसी सडन सिचुएशन थी, एक ऐसी परिस्थिति थी जिसने पूरे विश्व को आंदोलित किया और सारी चीजों को कहीं ना कहीं उसने रोक दिया। कोविड से कोई भी क्षेत्र अछूता रह गया हो, ऐसा नहीं हुआ, और सब जगह कहीं उसका एक अपना मारक प्रभाव दिखाई पड़ा। हमारी भारतवर्ष की खुशकिस्मती है, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक दूरदर्शी और बहुत कर्मठ नेतृत्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में, जिन्होंने इस कोविड-19 के समय हमें मार्गदर्शन दिया और पूरे देश में एक सकारात्मक ऊर्जा का उन्होंने प्रसार किया। परिस्थितियां बहुत विकट थी और उस पॉजिटिव एनर्जी में सभी लोगों को एक मौका मिला खुद को री इन्वेंट करने का। आई मीन एवरीवन गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज विद इन। तो ये जो हुआ, इससे एक चीज हमें दिखाई दी, क्योंकि आवश्यक है कि कोविड ने हमें कैसे प्रभावित किया, कोविड के दौरान हम क्या कर रहे हैं और पोस्ट कोविड हम क्या करते रहेंगे। तो उस सकारात्मकता को कहीं ना कहीं बरकरार रखने के लिए क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारे जीवन का। हम अगर सकारात्मक है और क्रिएटिव है तो हम निश्चित रूप से चीजों को आगे ले जा सकते हैं और देश की दिशा हमारे एक सकारात्मक भाव से आगे चलती रहे। तो वहां पे सांस्कृतिक पक्ष जो है उसका एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका होती है और कहीं ना कहीं हम सब उसका एक बड़ा हिस्सा है। एक सांस्कृतिक स्रोत के रूप में उसको ट्रेन यूथ तक ले जाने के लिए, इंफॉर्मेशन डिसमिनेट, सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए। तो इस दौरान जब ये हुआ कोविड के दौरान और हमारे पास दिशा निर्देश और एक सकारात्मक ऊर्जा थी, तो हमने निर्णय किया कि इस what we are going to do, we have lot of resources with us, we have our very rich archive, और हम उसको कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करें और इसको इंफॉर्मेशन को, ये जो हमारे सांस्कृतिक पक्ष है, और जब हम सांस्कृतिक पक्ष की बात करते हैं जो हर देश का एक बहुत हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, देश की धड़कन है, सोचता देश कैसे है, देश की जीवन शैली कैसे है, साहित्य कैसे है, उसकी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें कैसी हैं, उसकी कला, ये सब जो है सांस्कृतिक पक्ष है। तो हमारा ये भी कर्तव्य है, बनता था कि हम इन सारी चीजों को अब बांटना शुरू करें। और इस समय संस्कृति मंत्रालय के जो हमारे स्वयं माननीय मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, वो स्वयं इतने कर्मठ और ऐसा उनका प्रखर व्यक्तित्व है कि वो भी दिन रात यही सोचते हैं कि किस तरह से सांस्कृतिक पक्ष हमारा इतना मजबूती से आगे बढ़े कि देश के साथ हम उसको बहुत सारी चीजों को करते रहे। तो उन्होंने भी कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिसमें हमारा जिसमें हमने हमारा पार्टिसिपेशन, हमारी भूमिका, हमने पूरी कोशिश की कि उनके नेतृत्व में हम जो हमारे पास बेस्ट है वो कर पाए। और इस तरह विरासत सेतु जब आया तो 7 दिन का जो कार्यक्रम था और हमारे आर्काइव में जो चीजें उपलब्ध थी, हमने उनको लोगों से साझा करना शुरू किया ड्यूरिंग कोविड-19। और जब हमने उसको साझा करना शुरू किया, द चैलेंजेस व्हिच वी फेस वेयर टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से हम ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर सकते हैं, वो उस तरह से हमने उतने अच्छे तरीके से हमने उनकी फॉर्मेटिंग, उसको हमको फिर से करना पड़ा। हमें तकनीक का और हमें समझ में आया कि और बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है, और इन सारी चीज़ों को हमने पुनः एक बार कोशिश की इस तरह से कि हम सारे लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो हमने उनको शेयर करना शुरू किया और इस दौरान जो हमने कार्यक्रम किए उसमें निश्चित रूप से हमारा जो अपनी पार्टिसिपेशन था, जो
कार्यक्रम हमारे मंत्रालय के चल रहे, उनके साथ साथ जो कि बहुत सारे मंत्रालय बहुत ही सुंदर, बहुत ही एनकरेजिंग कार्यक्रम लेके आया है, उसमें हमारे पार्टिसिपेशन के साथ हमारे पास क्या उपलब्ध है। तो हमने पाया कि हमारे पास बहुत सारे कलाकार उपलब्ध हैं, हमारे CCRT स्कॉलर्स अवेलेबल है। तो हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको कार्यक्रम देना शुरू किया, क्योंकि सांस्कृतिक पक्ष मजबूत हमारा सतत रहना चाहिए। ये दिन रात अनवरत प्रक्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी कोरोना या कोई भी। और यही शिक्षा हमें अपने नेतृत्व से ग्रहण करनी थी कि किस तरह से हम स्वयं को बचाते हुए, सेफ रखते हुए ये सारी चीजें बांटें, डिसमिनेट करें। और तब हमने उन सारे कलाकारों को जो अपना नया प्रस्तुति दे सकते हैं डिजिटली, हमने वो फेसबुक लाइव किया, हमने यूट्यूब चैनल एक्टिवेट किया, और इस तरह से हमने ओल्ड गोल्ड के तहत उनको अपनी परफॉर्मेंसेस भेजने और शेयर करने के लिए कहा, और हमने उनको शेयर करना शुरू किया। उसके अलावा भी हमारे पास संस्कृति शिक्षण, हमारे पास व्याख्यान माला थी, जो संस्कृति शिक्षण के ऊपर हमारे बहुत सारे जो ऐसे एजुकेशनिस्ट जो हमसे जुड़े, संस्कृति कर्मी जो हमसे जुड़े और जिन्होंने बहुत सारे व्याख्यान दिए, ये वक्त था कि हम उसको भी लोगों के साथ साझा करें। तो हमने उसको फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से साझा शुरू करना किया। ये हमारा ड्यूरिंग कोविड रहा कि हम किस तरह से सकारात्मक रूप से देश के साथ जुड़े हो, हमारे अपने रिसोर्सेज शेयर करें, हमारे पास जो उपलब्ध है हम तकनीक का प्रयोग करते हुए उसको आगे बढ़ाएं। इसके अलावा हम लोगों ने ई पोर्टल के माध्यम से ट्रेनिंग भी शुरू की, और हम बच्चों तक सुदूर शिक्षक, पूरे देश भर के शिक्षकों से ट्रेनिंग के माध्यम से इसी दौरान जुड़े। मेरी कला मेरी पहचान हमारा एक कार्यक्रम था, जिसके जो हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया बच्चों को। जय घोष गीत की रचना भी इसी समय हुई, और उद्देश्य ये था कि वो युवा वर्ग जो हमसे CCRT स्कॉलरशिप के माध्यम से कलाकार बच्चे, युवा जो जुड़े हुए हैं, कोरोना पे उनके भी कितने विचार, किस तरह के और कैसी एनर्जी है, कैसा सोचते हैं, वो भी हम सारे बच्चों और युवा तक ले जा पाए। तो इस तरह से हमने इसी ड्यूरिंग कोविड हमने जय घोष गीत की रचना की, और हमारे बच्चे, हमारा यूथ उससे, हमारे कलाकार, गैर कलाकार उससे बहुत ज्यादा उत्साहित हुए। ये उनके प्रोत्साहन के लिए था। तो ये हमारी कला यात्रा, ये हमारी संस्कृति यात्रा ड्यूरिंग कोविड भी रिलेंटलेसली चालू रही, और इसमें हमने उन सारे नियमों का पालन किया जो आवश्यक थे, जो हमें गाइडलाइंस मिलती थी, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ अब लिमिटेड था, और उसमें हमें बहुत कुछ करना था। तो हम जा नहीं सकते, मूवमेंट्स नहीं हो सकते, उसमें क्या संभव है वो हमने किया। पोस्ट कोविड जो बात होती है, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे अभी हमने सुना हमारे वक्ता को, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा ये, अगर जब तक ये संक्रमण काल खत्म नहीं होता है, तब तक हमारे लिए वो सारी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, हमें जो जितनी हमें प्रिकॉशंस लेनी है, सावधानियां बरतनी है, वो चालू रहेंगी। और उनके बीच में हम कैसे सक्रिय हो पाए, हम ये सारी चीजों को किस तरह से अपने पूरे देश के साथ उससे जुड़ पाए, क्योंकि हर व्यक्ति देखना चाहता है, उसके अंदर जो कहीं ना कहीं सकारात्मकता, क्रिएटिविटी से, रचनाशीलता से, उद्यमिता से, इन सब चीजों से आती है। तो रचनाशीलता इस तरह की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करता है। तो यही हम डॉक्यूमेंटेशन के पक्ष में ऐसा ही हमने पाया और तय किया कि हमें और बेहतर फॉर्मेटिंग करनी होगी, तकनीक का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग और बेहतर तरीके से जो हम समझ रहे हैं, जो हमने री इन्वेंट किया है खुद को, जो हमने पाया है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम तकनीक का और बेहतर प्रयोग करें, ताकि हम ज्यादा टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग और इन सब चीजों में उसका कर पाए, सारी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट कर पाए। और इसी के साथ साथ जो प्रयोग है, शायद
इनमें जो परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए डॉक्यूमेंटेशन को एक हाई टेक्निकल साइड की तरफ ले जाते हुए अपने जो हमारी सारी ऑडियो विजुअल ये डॉक्यूमेंटेशन है उनको करते हुए ये भी ध्यान रखें कि जाना आना अब उतना सुगम नहीं रहेगा। और शायद हमने ये सीख लिया है कि बहुत सारी चीजें हम बहुत सारी एनर्जी को स्पेंड किए बिना, एनर्जी ऊर्जा क्षरण किए बिना भी कर सकते हैं। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और एक नए आर्थिक रोल में हमारा देश आने जा रहा है, तो शायद हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां किस तरह हम लोगों को स्ट्रेंथन करें, वहां किस तरह से एक व्यक्ति जाए और एक पूरे ग्रुप को तैयार करके आए, ना कि पूरे ग्रुप को यहाँ बुलाएं और करें। तो छोटे छोटे ऐसे मॉड्यूल्स तैयार करना, छोटे छोटे ट्रेनिंग सेशन तैयार करना, कम से कम लोगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और उन्हें तैयार करना, पोस्ट कोविड हमारा ये अप्रोच रहेगा आप सभी लोगों के लिए। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जितना ज्यादा उद्यमशील हो सकते हैं इन सारे प्रिकॉशंस के बीच में, जब तक हमारा ये पूरा संक्रमण खत्म नहीं हो जाता। और शायद उसके बाद भी दुनिया का चिंतन बदल जाएगा। हम शायद ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग से हमने जो सीखा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रह जाएंगी। हम इन एक बदले हुए स्वरूप में जो ज्यादा क्रिएटिव होगा, ज्यादा रचनाशील होगा, ज्यादा सकारात्मक होगा और कम ऊर्जा के दे के बहुत ज्यादा चीजें उपलब्ध करने की कोशिश करेगा, वो रहेगा जारी मूल रूप से। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब और भी ज्यादा जैसे अब एक जो पूरा देश है और पूरा विश्व है वो प्रकृति से कहीं जो भूला हुआ था उससे फिर से जुड़ रहा है। मनुष्यता, मानवता का एक नया रूप दिखाई पड़ रहा है। ये जो भाव है जो हृदय पक्ष को छूते हैं, ये सांस्कृतिक पक्ष के हैं। और मेरे ख्याल से हम सांस्कृतिक शिक्षा के लिए जो हमारे जो प्रयास हम कर रहे हैं वो और द्विगुणित करके हम जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको जारी रखें। और आप सब लोग जो इतने रचनाशील हैं, जिन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सब इस प्रयास से जुड़ेंगे और इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे अपने देश के लिए, अपने यूथ के लिए और विश्व के आगे। जो हमें एक उदाहरण, पूरा विश्व जो हमारे देश को देख रहा है, हमारे नेतृत्व को देख रहा है, उसके आगे हम एक अच्छा अपनी भूमिका हमारी रहेगी और हम उसको निभा पाएंगे। तो आप सबका सहयोग चाहिए, मैं ये कहना चाहती थी। और उम्मीद है कि आगे डिस्कशन में हम इसको जारी रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. As you rightly said, necessity is the mother of invention. And during this COVID-19, we have also evolved many new strategies to attract as many people from all over the country, not even the country, from abroad also. Now it's a kind of the whole village, whole globe has come in our drawing room, in our channels and all that. So we are trying our level best to enhance our outreach also. सुनील शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करूंगा, लेकिन पहले उनकी जो फिल्म रहस्य उन्होंने बनाई CCRT के लिए, उसकी एक झलक देख लेते हैं। यह लीला कहीं गहरे भारतीय मानस को छू गई और पूरे देश में रासलीला या उससे प्रभावित दूसरे प्रदर्शन होने लगे। छत्तीसगढ़ में भी रासलीला इसी तरह आई। धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने रास को अपने समाज का हिस्सा बना लिया। रास से रहस्य होते हुए यह लीला छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में जो लोक नाट्य की परंपरा है वो बहुत पुरानी है। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में जिस तरह के रंग कर्म का उल्लेख किया है, लोकमंच का उल्लेख किया है, उसकी सारी स्थितियां उसमें दिखलाई देती हैं।
बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके कुछ प्रश्न भी हम लेंगे। मैं देख पा रहा हूँ वेबिनार चैट में। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज राइट योर क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, बिकॉज यू आर रेजिंग हैंड्स एज वी आर टोल्ड। सुनील जी, अभी आपने जो रहस्य का हमने झलक देखी, बहुत सारे कलाकारों को एक साथ लेकर आपने उस फिल्म को बनाया। तो अब ऐसी कोविड-19 वाली स्थिति में, और खास तौर पर जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं वो सभी ग्रुप बेस्ड आर्ट फॉर्म्स, तो किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कोविड-19 के बाद? सर, ये जो आपने, सबसे पहले तो आपको और मैडम को बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बढ़िया मुद्दे को इतनी गंभीरता से लिया और अब इसके किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो इसमें कोविड और पोस्ट कोविड वाली बात आ रही है, मुझे नहीं लगता कि पोस्ट कोविड नाम का कोई एरा अब होने वाला है। सब कोविड ही कोविड चलता रहेगा, जैसे हम उसके साथ ही रहने की हमको आदत डालनी है। इस अवस्था में ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम, डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है हम लोगों, आपकी, सबकी। तो जैसा आपने कहा कि ये जो, क्योंकि जो धरोहरें हैं, जो सांस्कृतिक बहुलता है, जो सांस्कृतिक जो विभिन्न प्रस्तुतियां हैं या आर्ट है, तो वो सामुदायिकता के साथ में रहती है। सबसे बड़ा खतरा तो ये जो कोविड के चक्कर में जो आया है कि कई जगह हो सकता है कि आपको कोई गांव के गांव खाली मिल जाए, या कुछ जो उसके की, हर आर्ट फॉर्म के, हर चीज के की पर्सन्स होते हैं, वो 2-4 लोग होते हैं जो उसको उठाते हैं, उनको फॉलो करके लोग पूरा सब काम करते हैं। तो वो जो वहां से गांव खाली हो गए हों, गांव न रहें, या कुछ लोग मर गए हों, कुछ लोग बीमार हो जाएं, कुछ ये हो जाएं, तो ये कब कितनी कठिन हो जाए परिस्थिति, तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि ये काम जो है बहुत बड़े पैमाने पर, जैसा मैडम ने बताया कि आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत बड़ा बजट रख के इसको तुरंत बहुत मल्टीपल टीम्स के साथ किया जाना चाहिए। और जैसा ये भोजपुरी जी ने भी बताया कि इस वक्त और आज की बार बार आपको इतने डिस्टेंसेस में ट्रेवल करना अलग अलग जगह पे, पूरी दिल्ली या बॉम्बे या बड़े शहरों से गांव के रिमोट एरियाज में टीम ले जाने की बजाय, अब ये स्ट्रेटेजी हम लोगों की नई इस तरह की होना चाहिए कि हम लोग लोकल लेवल पे, मतलब एक, समझ लीजिए एक स्टेट वाइज या 3-4 स्टेट्स में उसमें कोई एक टीम को तैयार कर पाए जो ये डॉक्यूमेंटेशन का काम कर पाए। लेकिन यहाँ पे सर, जो मैंने बहुत डॉक्यूमेंटेशन किया है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन किया है, जिसमें एक डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमने किया, जो सरदार सरोवर की जो बांध बन रहा था, उसके नर्मदा के डूब क्षेत्र में जो आने वाली पुरातात्विक धरोहर थी, उनका हमने डॉक्यूमेंटेशन किया था। वो अब सब डूब गई हैं, वो खत्म हो गई हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन सरकारी ठिकानों में मौजूद रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम ऑफ मैन है, ट्राइबल, बहुत सारे ठिकाने, बहुत डॉक्यूमेंटेशन मौजूद रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या जाती है, डॉक्यूमेंटेशन तो मौजूद है लेकिन वो पड़े हुए हैं, उसकी कोई कैटलॉगिंग नहीं हुई है, उसका कोई व्यवस्थापन व्यवस्थित नहीं रखा गया है, और उसकी मार्किंग नहीं हुई है, उसके लाइब्रेरी में सिस्टमेटिकली नहीं रखा गया है। जब तक वो ठीक से नहीं रखा, एक्सेस नहीं हो रहा है, वो वेस्ट है, बकवास डिब्बा बंद पड़ा हुआ है, उसको कोई कभी नहीं देखने वाला। और वहां के लोग भी जो हैं, आप जरूरत पे मांगिए कोई भी चीज, 15-20 दिन, महीने भर ढूंढते रहते, कभी नहीं मिलता है। ये तो तब की बात है जब वो टेप में और उसमें फिल्म में उसमें स्टोर होती थी, क्योंकि वो फिजिकली मौजूद तो रहती थी कि हम कभी ना कभी उसको ढूंढ लेते हैं। आज तो डिजिटल एरा है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का जो इसको कुछ हम लोग को बहुत जल्दी से एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इसको जब तक नहीं रखेंगे, सहेजेंगे, वो आपको मिलने वाला नहीं है आगे। और प्रोजेक्ट के लिए जैसे आप लोग ने इतने सारे प्रोडक्शन किए हैं, फिल्म्स करी, आप लोग इतनी सारी किताबें बनाई हुई हैं, तो इसमें जैसे जो फिल्में हम लोग ने बनाई हैं, हम लोग बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब इट्स हेल ऑफ अ जॉब ऑफ मेकिंग फिल्म। जैसे ये जो रहस्य की बात है, बहुत बड़े टीम, मतलब 9 डेज तक इनका परफॉर्मेंस चला। हम लोग पूरे वहां पे एक ही विलेज में वहीं मौजूद थे पूरे 24 आवर्स। तो इतनी पूरा गांव का गांव उसमें उमड़ के काम करता था। अब ये स्थिति कतई नहीं है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तमाम वो हम लोग जो शहर से जाते हैं, उनके लिए ये बहुत सारी मुश्किलें और रहती हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये जो सिक्योरिटी मेजर, सेफ्टी के और सब, सैनिटाइजर और ये सब, जिसको गांव वाले, मुझे पता नहीं कि अभी क्या है, उन्होंने किस तरह से इसको अपनाया है और क्या अपनाया या नहीं। तो ये सब के साथ में वही लोकल जो लोग हैं, क्योंकि लोकल लोगों की ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे।
हम लोग जाते हैं तो 2-3 दिन तो हमको उनसे एक अपना तारतम्य बिठाने में लगता है। तो और इसके लिए जो लोकल हम लोग रिसोर्स, लोकल टीम तैयार करेंगे, उसमें मेरा सजेशन ये था कि जो जैसे सीसीआरटी के आपके 5-6 बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, उदयपुर है, हैदराबाद है, शायद गुवाहाटी है और भी है, तो यहाँ पे वर्कशॉप्स करी जा सकती हैं जिसमें कि लोगों को ट्रेन किया जाए। और वैसे तो जैसे बात सही है कि कम से कम टीम ले जानी चाहिए, लेकिन एक क्लास डॉक्यूमेंटेशन और फास्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमको थोड़ी सी प्रॉपर टीम चाहिए, जिसमें कैमरा तो चाहिए आपको, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट और स्टिल कैमरामैन, स्टिल फोटोग्राफर बहुत जरूरी है, रिसर्चर होना एक बहुत जरूरी है, और एक राइटर और इंटरव्यूअर जो मतलब खोजे और लिखे चीजों को वहीं के वहीं। और एक और मुझे लगता है कि अब चूंकि हम लोग और बढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी भी शामिल हो रही है, हर मौके पर एक इलस्ट्रेटर यदि मुहैया हो सके तो वो बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत पुराने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इलस्ट्रेटेड है, इलस्ट्रेट किए हुए हैं, ये सब तो बाद में शुरू हुई हमारी फिल्में और ये सब चीजें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक छत्तीसगढ़ में रामनामी सेट पे मैंने फिल्म किया था, फिल्म डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो हम लोग जब लौट रहे थे तब पता लगा था कि उस दिन एक बच्ची की शादी हो रही है, और वो रामनवमी के मंडप में जो शादी हो रही वो आखिरी शादी थी, 100 साल हुए थे उस मेले को, तो वो आखिरी शादी हम लोग ने भाग के उसको डॉक्यूमेंट किया। तो वो रियल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है, उसको कई लोग हमसे मांग चुके हैं कि वो फुटेज हमको दे दीजिए, ये चाहिए, लेकिन वो फिल्म प्रॉपर्टी है। तो ये कई बार ये डॉक्यूमेंटेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी सर मैं ये भी देख रहा था, जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने जो अटेंड कर रहे हैं वेबिनार, बहुत लोगों ने डिमांड किया, हमारा मेल भेजा है कि मेल आईडी भेजा, हमको सर्टिफिकेट भेज दीजिए, सर्टिफिकेट भेज दीजिए। तो सर्टिफिकेट इज व्हाट इज द सर्टिफिकेट? दैट इज डॉक्यूमेंटेशन कि यू हैव अटेंडेड अ सेमिनार, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि आपके पास सर्टिफिकेट है। तो आप लोग और इस पे आपको बहुत ज्यादा वो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। कुछ जो बजट है, मेरे ख्याल से कल्चरल मैपिंग के नाम पे पिछले बार जब मैं दिल्ली आया था तो सुना था, मैं विस्तार से बात नहीं हो पाई, कल्चरल मैपिंग नाम पे कुछ बड़ी चीज हो रही है और बीच बीच में उसके बारे में सुनता भी रहता हूँ। तो ये बहुत युद्ध स्तर पे हमको सब तरफ ये चीज करने की बात है। और जो इसमें जो जनरेशन्स में कई बार जैसे आप कुछ करने जाए तो एक परिवार, एक 3 जनरेशन एक साथ काम करती हुई दिखती है। जैसे कोई आर्ट है, सपोज कर लीजिए कि जैसे यहाँ पे बाग प्रिंट है मध्य प्रदेश में, तो वहां पे 3 जनरेशन साथ काम करती है। या हम लोग झाबुआ में गए जो गुजरात से लगा हुआ है, तो उसका बड़ा बेटा गुजरात में रहता है, छोटा बेटा मध्य प्रदेश में रहता है, एक बॉर्डर पे है, लेकिन वो काम सब साथ में करते हैं। तो पूरा वो कभी वो लेडी आके करती है, कभी ये आके करते, कंटिन्यूस सुबह से रात तक वो चलता रहता है। तो ये बड़ी अद्भुत चीजें हैं, और हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है कि ये सब किया जाए, लेकिन वही रिसोर्सेस और समय अभाव, इन सब के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन आज जो बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोगों के पास है वो कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी से हम लोग पहुंच जल्दी सकते हैं उनके पास में। और जो पॉल्यूशन जो अब लोकल एरिया में भी होने लगा है, ये मैंने अभी और महसूस किया। अभी लॉकडाउन में भी मैंने वेब सीरीज देखी, और बहुत सारी वेब सीरीज देखी। ये वेब सीरीज का बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन मोबाइल में उपलब्ध है। तो अब ये गांव खेड़े में सब तरफ ये वेब सीरीज भी बहुत तेजी से पहुंच रही है। तो और ये जो है हिरास जो उसको कह रहे हैं, वो उनकी कला और इसमें हो रहा है, जिसके पहले हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन कर पाए, ये बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। धन्यवाद सुनील जी। काली प्रसाद मौर्य जी के पास आने से पहले मैं चाहूंगा कि हम उनकी फिल्म जो उन्होंने सीसीआरटी के लिए बनाई विदेशिया, उसकी एक झलक देखें। ये है विदेशिया शैली के जन्मदाता भिखारी ठाकुर का पुश्तैनी घर। दरियाओं की सिमटन और फैलाव के किनारे बसे इस छोटे से गांव में जन्मे भिखारी ठाकुर विरह के ऐसे संत थे, कला के ऐसे जिनके बारे में हिंदी के प्रख्यात विद्वान राहुल सांकृत्यायन बस कह उठे, भिखारी तुम भोजपुरी के शेक्सपियर हो, एक अनगढ़ हीरा हो। वो पूरी मजदूरों के माइग्रेशन पर है। तो ये भी एक बड़ी ज्वलंत समस्या आज के कोविड-19 के दौरान हम देख रहे हैं। तो इस तरह का सब्जेक्ट अगर अभी हम भविष्य में लें और आपको ऐसी फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित करें, तो क्या
स्ट्रेटेजी में चेंज आएगा, क्या मीडियम कुछ चेंज होगा या टेक्निक कुछ चेंज होगी, कृपया उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी नमस्कार। जी 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 धन्यवाद। नमस्कार सभी, आप सभी को प्रणाम। मैडम को नमस्ते, ऋषि जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। हम लोग बहुत दिन बाद एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। खैर, स्ट्रेटजी तो खास करके डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत मुझे लगता है नहीं होती है, क्योंकि मैं तो रिपोर्टर रहा हूँ। मुझे एक कैमरा चाहिए और साउंड वो कैमरामैन आजकल कर लेता है, क्योंकि अब चीजें बहुत बदल गई हैं। पहले जैसा कोई लग्जीरियस अब मामला रहा नहीं है कि साउंड रिकॉर्डिस्ट अलग से जा रहा है और अलग से बहुत सारी चीजें ली जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइपॉड भी आजकल उस इस तरह के हल्के हो गए हैं कि ट्राइपॉड भी कैमरामैन अपना खुद ही उठा लेता है। तो ऐसे वक्त में जब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है और ये इस तरह की रिसर्च भी आ रहे हैं कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते ही रहना पड़ेगा, और ये आगे तक चलने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्री ऐसा फॉर्मेट है जिसको कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जब भी करना चाहें, ऐसे में खाली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां हम जा रहे हैं उनका ख्याल रखें कि अगर वो फॉर्म ऐसी है जो ग्रुप में डांस होता है या कुछ इस तरह के फॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग ग्रुप में बैठते हैं, तो वहां थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और वो बताया जा सकता है कि पहले इस तरह से होता था लेकिन अब इस तरह से हो रहा है फिलहाल। लेकिन अगर चाहें तो कुछ लोगों के पास पुराने वीडियोस पड़े होते हैं, वो रिसर्च करना पड़ेगा कि कुछ पड़े हैं तो उसको ले लें, कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से। कई बार कई चीजें हम डॉक्यूमेंट्री को जो अभिव्यक्ति है डॉक्यूमेंट्री की, उसमें कई तरह के तरीके हैं। जैसे कि हमारे सीनियर बैठे हुए हैं सर, एफटीआई से हैं, तो अपना अपना तरीका होता है सबका कहने का, किस तरह से कहें। खैर, मुझे वो बहुत ज्यादा समस्या नहीं लगती है, और इसमें जिस तरह की समस्याएं आएंगी जैसा भी होगा वैसा देख लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो एक गालिब का शेर याद आ रहा है कि कोई उम्मीद पर नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, और मौत जब एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दूसरी तरफ अभी हमारे एक मित्र हैं शायर, उन्होंने लिखा कि जहाँ हथेली पर लिए सारा जमाना छोड़कर, जहाँ हथेली पर लिए सारा जमाना छोड़कर, इश्क है मुझसे तो आजा लॉकडाउन तोड़कर। तो गला तो जो अभी क्या है कि ज्यादातर हमारे साथ हमारे देश में अभी कोरोना ने हमको मनुष्य बना दिया असल में, और हमको अपने सनातन जो परंपराएं हैं, असल में संस्कृत बचाने की तो बड़ी चिंता हुई और बड़े आंदोलन हुए, लेकिन संस्कृति बचाने की चिंता नहीं हुई। और संस्कृति बचाने का जो ये केंद्र काम कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कुछ विषय यहाँ इनके लिए डॉक्यूमेंट्री बना पाऊँ। खैर, मैं एक बात ये मानता हूँ कि जिस तरह के अभी चीजें जा रही हैं, और मेरी फिल्म का जो विषय है खास करके ये पलायन का, मुझे तो खुशी होगी। मेरे जो मेन जो संत जिनको मैं कहता हूँ भिखारी ठाकुर, वो तो खुश हो रहे होंगे कि जो लोग गांव छोड़ के चले गए थे वो लोग वापस जा रहे हैं, और अब गांव में विकास होने की संभावना बढ़ रही है। गांव में लोग मिल नहीं रहे थे, वहां बुजुर्ग बचे हुए थे या बच्चे, वहां जवान सारे शहरों में जाके मर खप जा रहे थे। अरे, और पूरा रिसर्च है कि इसमें कितने लोग वापस नहीं जा पाए, और गए भी तो जैसे गए थे वैसे ही वापस गए, बड़ा बक्सा लिए चमचमाता हुआ, और यहाँ से नई बनियान पहन के और पुराने कपड़े बैग में रख के वहां लेके गए। और वहां जब खोला गया, लोगों ने जानने की कोशिश की क्या कमा के लाए हैं, तो पता चला वहां कुछ भी नहीं, जान बचा के वापस चले जाएं यही बहुत। एक मुजफ्फर साहब की एक फिल्म भी थी गमन, जिसमें वापस कोई एक आता है और जा ही नहीं पाता। तो इन सब तरह की समस्याओं से भी निजात मिली है, और हमको पॉजिटिव वे में लेके और संयमित जीवन जीने की कला फिर से हमको सीखनी पड़ेगी, और नहीं सीखेंगे तो कोरोना सिखा देगा। मैं तो कहता हूं कि ये अपने आप में एक दैवीय शक्ति है जिसने पूरे विश्व को सिखा दिया है कि तुम कुछ नहीं हो, प्रकृति ही सब कुछ है। और मैं तो इसीलिए कहता हूं कि ये जो दौर है, इसमें हमको फिर से एक बार समझने की सोचने की कोशिश करना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली और जो पहले संयुक्त परिवार थे, उनमें जो दूरियां बन गई थी, वो उसको फिर से सिमटाने का काम इसने किया है।
अभी गांव में जब लोग वापस गए हैं तब फिर से याद कर रहे हैं कि हम कहाँ पे क्या करते थे और कहाँ क्या हो रहा था। जिन स्कूलों में जाने से बचने के लिए लोग शहर भागे थे जो नौजवानी में, वो अब जाके वहीं स्कूलों में रखे जा रहे हैं क्वारंटाइन के लिए, वो उसी प्राइमरी में, और वहां रहने के लिए लोगों के लिए जगह नहीं, लोग गांव में भी कहाँ घुस पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो होता है जब होता है उसका एक पॉजिटिव साइन भी होता है। मुझे लगता है कि ये वक्त मनुष्य को अपने आप को समझने का सबसे बड़ा वक्त है, और जिस तरह की भी जिसमें कला है इस समय सृजन करने का सबसे अच्छा मौका है। और मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैंने अभी इस कोरोना के दौरान एक गीत लिखा है, उसका दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अवधि में है कि घूमती है चुड़ैल कोराना, बलम कहीं बहिरे न जाना। घूमती है चुड़ैल कोराना, बलम कहीं बहिरे न जाना। बहिरे जो जाना मुखौटा लगाना, बहिरे जो जाना मुखौटा लगाना। एक मीटर दूरी से बोल बतियाना, केहू से हाथ ना मिलाना, बलम कहीं बहिरे न जाना। एक तरफ ये गीत है और एक तरफ विदेशिया, जब भिखारी ठाकुर ने लिखा तो उन्होंने लिखा, पिया गईले कलकत्तवा ए सजनी, पिया गईले कलकत्तवा ए सजनी। गोड़वा में जूता नहीं थे, मुड़वा पे छतवा ए सजनी। कैसे चली है रहतवा ए सजनी। मुझे तो खुशी है कि विदेशिया वापस आ गया। जी शुक्रिया। बहुत ही सुंदर मौर्य जी, आपने तो अपने गीत के द्वारा जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और जो नॉर्म्स हमें डूज एंड डोंट्स कोरोना में फॉलो करने चाहिए उनका भी बहुत अच्छे से वर्णन किया। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ हमारी वेबिनार चैट में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और मुझे लगता है अगली बार हमें अपनी वेबिनार का समय भी बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादातर प्रश्न हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे मीडियम के बारे में है, लेकिन कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो हम ले सकेंगे। नम्रता कोहली जी का प्रश्न है कि जो डिजिटल कंसर्ट का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कोविड के दौरान, जैसा आप सभी जानते ही होंगे, सोनू निगम जी ने टिक शो किया और इस तरह के शो जो हैं वो आर्टिस्ट को भी एक जीविका उपार्जन का साधन देते हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रश्न आर्टिस्ट के, कलाकारों के लिए आज के समय में बन गया कोविड में। तो क्या इस तरह के डिजिटल कंसर्ट आगे भी इस तरह से चलेंगे? उनका किस तरह से हम लोग फोक आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए प्रयोग कर पाएंगे? कोई भी, आप गोर पुजारी साहब आप बताना चाहेंगे? आपने काफी आर्टिस्ट के साथ डील किया। ठीक है, मैं उससे पहले मैं सुनील जी और काली प्रसाद जी के जो उन्होंने अपना विचारधारा रखे, थोड़ा सा मैं मेरा भी उसमें थोड़ा सा एडिशन है और कमेंट्स है। एक व्हाट सुनील जी से इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट अभी डॉक्यूमेंटेशन और भी जोर से करने का टाइम आ गया है। We have to really put lot of emphasis on documentation, especially of arts which are vanishing, like he said about the architectural the treasures which went underwater in Madhya Pradesh. And another thing is that jo Sunil ji ne bola, which is very important, is that we do a lot of documentation, but these are not available for public. So I think that is very important, because otherwise there is no there is no result of the documentation. Actually, it's just done for the sake of it, then it doesn't go anywhere. So I think, for example, I would like to make a request to CCRT using that comment only, that if you can, make all the documentaries you have made till now. You said I think 35 documentary films CCRT has produced over the years. So if you can upload all the films on your, YouTube channel, it will be great.
I mean, as a film lover, as a documentarian myself, I would like to watch what Kali Prasad ji has made, what Sunil Shukla ji has made, or what other filmmakers associated with CCRT has made. You know, like for example, in case of my own film, I get a lot of requests from people, you know, a lot of, you know, on Facebook and all that. Where can we get to watch the film? I always tell them you have to go to CCRT website and buy the DVD. Now the problem is that now DVD has become outdated. You know, there are hardly any laptops which have a DVD drive now. So you cannot play. DVD players are obsolete now. Everything is online. Everything is, you know, pen drive and everything. So I would request CCRT to, you know, upload films on its channel on YouTube so that people can access them. And I think it will be helpful not only for film lovers but also for a lot of, you know, researchers and academics. You know? So that's one request. And another thing. समय की थोड़ी सीमा है, so I would like to inform you that CCRT has already started releasing one film on every Friday at 11 a.m. We have already screened our film on Saraikela Chau, and now we will be continuing one after the other, and we will show all our documentary films. So I hope, I just thought that those films are once uploaded, they are available on the channel, you know, for all times to come. Yeah, all times. So that, So that. And another, very briefly, I would like to say that Kali Prasad ji ne jo bataya ki now it's possible to make a film with a very small crew, which is very true, but it also depends on subject to subject. You know, there are films which have been made by a single person crew, but suppose you make a subject like a wildlife subject, then you need a bigger crew. So it depends on, you know, subject to subject, but it's, of course, it's very possible to make a film with a small crew, and which we would all try to do that way in the keeping in view the whole corona crisis. That's all. Thank you. एक और क्वेश्चन मैं ले पाऊंगा हमें पौलमी मुखर्जी जी पूछना चाह रही हैं कि जो एक आर्टिस्ट और दर्शक के बीच में एक रिश्ता होता था, एप्लॉज का, इमीडिएट रेस्पॉन्स का, वो अब नहीं रहा है। तो क्या ये इस तरह का जो हम लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, हालांकि हम आपके प्रश्न पढ़ पा रहे हैं, तो क्या वो रिश्ता फिर से बन पाएगा? क्या आर्टिस्ट जो एक एप्लॉज के लिए, एक जो कहना चाहिए कलाकार की भूख होती है कि वो अपने दर्शकों की सराहना, अपने दर्शकों के रिएक्शन शीघ्र देख पाए, ऑन द स्पॉट देख पाए, क्या ऑनलाइन मोड में वो किस तरह से एड्रेस होगा? तो इस पे आप मैं बोलना चाहोगे? मैं बोलती हूँ। ये बहुत आई थिंक लोग बोलना चाहिए था, बट देन स्पॉन्टेनियस जो आता है। देखिए, ये कलाकार को कहीं ना कहीं ये अप्रिसिएशन चाहिए। ये जब हम लाइव देखते हैं तो ये चाहिए होता है, लेकिन मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ कि ये जो अभी परिवर्तन हुआ है, इसमें कहीं से कलाकार को और भी बड़ा अपने को री इन्वेंट करने का एक मौका मिल गया है, क्योंकि कलाकार को सीधे नहीं देख रहा है ऑडियंस, जब वो डिजिटली देख रहा है, और सीधे वो उसको अपलॉड नहीं कर सकता है, वो अप्रिशिएट कर सकता है जो बेशक उस तक ना पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कलाकार अपने होराइजन को और बेहतर और बड़ा करेगा। अन्यथा कहीं मुझे लगता है कि जब वो लाइव देते हैं और कहीं पे सुधी श्रोता या दर्शक एक सही जगह पे नहीं अपलोड करते, तो थोड़ा सा उनका एक डिसअपॉइंटमेंट भी होता है कि शायद दर्शक मेरी बात नहीं समझे। तो इसको इस तरह से लीजिए, सकारात्मक भाव से, कि आपके लिए और ज्यादा अपने जो होराइजन है, आपका जो फलक्रम है, आपकी जो गहराई और उसको बढ़ाने का ये ऑडियंस जो डायरेक्ट अपलॉड नहीं कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, और जब कभी डायरेक्ट मौका मिलेगा तो शायद और बढ़िया चीजें सामने नजर आएंगी। धन्यवाद मैम। अभी हमारे बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं और हमारे होस्ट से हमें एक थोड़ी सी कहना चाहिए ये मिली है ग्रीन सिग्नल कि हम कुछ और समय ले सकते हैं। तो एक प्रश्न और है जो डॉक्टर डी लाल लिख रहे हैं कि जिस तरह से गांव के लोग कल्चरल प्रोग्राम्स में जाते थे और ज्यादातर सभी गांव में रामलीला, रासलीला ये सब होता था, अब कोरोना के चलते और इवन आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोविड-19 में भी चूंकि इस तरह के आयोजन नहीं हो पाएंगे, तो गांव की पृष्ठभूमि में रहने वाले लोग, गांव के लोग किस तरह से इन कार्यक्रमों को एंजॉय करेंगे? ये प्रश्न मैं चाहूंगा कि मौर्य जी, चूंकि आपने गांव में विदेशिया में जाके देखा, शूट किया,
तो गांव के लोगों को किस तरह से ये मनोरंजन जो हम ऑनलाइन उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं उसको वो कैसे देख पाएंगे, क्या उस बारे में उनके समाधान हो सकता है इस समस्या का? जी, ये समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी है कि जैसे सीसीआरटी का अभी फिलहाल जो लिंक है या जो जो चैनल है उसका प्रचार या प्रसार उतना हुआ नहीं है, तो फेसबुक या जिस तरह से भी जहां तक हो सके सोशल मीडिया पे इसको पहले तो प्रसारित किया जाए। उसके बाद अपने आप आजकल मोबाइल हर किसी के पास है। गांव में तो जो उल्टी सीधी चीजें देखने से अच्छा है कि कुछ इस तरह की चीजें देखें और उससे उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा कि वो अपनी कला जो भूल गए हैं या जो नहीं करना चाहते थे, जिसको अब वो मानने लगे थे कि इसमें कुछ नहीं रखा है, वो उसको उस तरफ मुझे लगता है मुड़ेंगे लोग। क्योंकि जैसे अब गांव में अब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए हैं, तो वो जिस तरह से चौपाल लगती थी, जिस तरह से लोग बातचीत करते थे, वो होगी होगी ऐसा। और जब चहल पहल बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उत्सव का माहौल बनता है, और उत्सव गांव के लोगों की परंपरा रही है, उनकी वही उनका वही धन है। और मुझे लगता है कि हमारा देश गांव का देश है, और गांव में इस तरह की चीजें अगर आएंगी तो बहुत अच्छा होगा। और सीसीआरटी का चैनल जो है अभी फिलहाल, इसको थोड़ा सा और प्रचार प्रसार इसका किया जाए और चीजें लोगों तक पहुंचेंगी तो थोड़ा सा उनको और अच्छा लगेगा और अवेयरनेस होगी, और कुछ ना कुछ वो भी करना चाहेंगे। उनको लगेगा कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है। चूंकि शुक्ला जी आपने एक टीचर फोरम भी बनाया है, और हमारे एक टीचर हैं गजानन शुक्रवार, जो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो टीचर्स हमारे हैं वो किस तरह से हमारे डिसेमिनेशन में, हमारे प्रोपेगेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर में ऑनलाइन प्रोग्राम्स को, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि कुछ टेक्निकली कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। टीचर्स के कार्यक्रम अगर बच्चों तक पहुंचाने हैं या अपने स्कूल्स के माध्यम से कम्युनिटी समुदाय तक पहुंचाने हैं, तो उनके लिए कोई आसान स्ट्रेटेजी या कुछ ऐसा कुछ ट्रेनिंग है? टीचर्स के लिए तो आजकल बहुत सारी ट्रेनिंग्स और होता रहता है उनको काफी, बल्कि कई टीचर्स तो कहते हैं कि इतना ज्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं वो ट्रेनिंग में कि एक ट्रेनिंग करके आते हैं फिर दूसरी करनी पड़ती है। तो ये मोबाइल जो है इसके तमाम दोषों के बाद में ये बहुत बड़ा एक सोर्स है लर्निंग का। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मेरी बेटी के स्कूल में ही उसको मोबाइल एक बार ले गई थी वो कैब बुक करने के लिए प्रैक्टिकल में, तो बहुत बवाल हुआ था, प्रिंसिपल ने बहुत मुसीबत करी थी। और अब जो है उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं मोबाइल पे कि उसने यूज नहीं किया कि नहीं प्रोवाइड हर मोबाइल कि मोबाइल से क्लास हो रही है। तो ये मैंने बोला कि अब आप एकदम से बदल कैसे गई 3 महीने के भीतर? तो ये चीजें ये हो गई हैं और हो नहीं पड़ेंगी। तो टीचर्स के लिए बहुत सारे एप्स और बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जिसमें जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, एक स्टॉप मोशन एनिमेशन है, वो बहुत छोटा सा बहुत ही सिंपल है। आप मोबाइल से शूट करके बहुत इंटरेस्टिंग वे में कुछ बना सकते हैं, जो बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत हास्य से भरपूर रहेगा और उसको बहुत जल्दी उससे समझते हैं बच्चे। तो बहुत बड़े और टेक्निकल गैजेट्स की जरूरत नहीं है, और आप एक दो लिंक्स में जाएंगे तो उसके बाद आपका फिर दायरा जैसे नेटवर्क होता है ना, तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो मिल जाए आपको, संपर्क होता जाता है। बाकी अब मुझे लगता है कि ये जो, क्योंकि सीसीआरटी में भी टीचर्स ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी चीज को एड्रेस करते हैं, तो शायद आप वेबसाइट में थोड़े दिन बाद में अपन ये चीज भी दे सके टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, इस तरह के मॉड्यूल्स। यहाँ मैं बताना चाहूंगा एक कोशिश सीसीआरटी ने भी की है, अपने ई पोर्टल पार्टनर जो हमारे रूट्स टू रूट्स हैं उनके माध्यम से हम लोग हमारे ट्रेंड टीचर से जुड़ रहे हैं। उनके एंड्रॉयड मोबाइल्स में या लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर जो उन्होंने डेवलप किया है, जो पूरी तरह से इंडियन बेस्ड है, स्वदेशी है, वो हम अपलोड कराते हैं और उसके माध्यम से हम उन टीचर्स तक तो पहुंच जाते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो वर्चुअल क्लासरूम सिचुएशन में उनसे इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। मैं आज की चेयर डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो पूरे सेशन को समराइज करें, जो आज की अनुशंसाएं हैं, रिकमेंडेशन हैं, वो हमसे शेयर करें ताकि हम उन पर कार्य करें और अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करें। First, we started with Mr. Uppal, and his suggestion was that probably post-corona things are not going to be very easy, but then documentary and documentation will, instead of a group activity, it will maybe based on a single
person or this will be reduced because of the limitations. तो उनका था कि ग्रुप से शायद वो सिंगल पर्सन में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भी उन्होंने उसमें सुझाव दिए कि किस तरह से लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं बाकी लोगों के सुनने के बाद, और परिवर्तन जो आएगा। शुक्ला जी ने बताया कि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया है, लेकिन कंसर्न है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं एंड इफ वी आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली, इसकी कैटलॉगिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो हमें उसको प्रॉपरली अवेलेबल करवाना चाहिए, डंप नहीं कर देना चाहिए, बिकॉज आफ्टर सच अ हार्ड वर्क वो लोगों तक पहुंचेगी तभी। और शायद पोस्ट कोरोना हमें इसकी अब अहमियत समझ में आ रही है, इतनी मेहनत से जो चीजें की गई हैं वो अब हमारे लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि रीजनल सेंटर को भी हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, रीजनल लेवल पे भी लोगों को कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो फोटोग्राफर और एक इलस्ट्रेटर, उन्होंने उस पर स्पेसिफिकली जोर दिया कि हमें इलस्ट्रेटर की एक और हमें मिल जाए तो शायद और हम बेहतर कर पाए, क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो काफी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिस तरह से पोस्ट कोरोना हमने उसकी अहमियत देखी है। और साथ ही साथ रिसोर्सेज को हमें इंक्रीज अगर हम कर पाए और हम अपने बजट को बढ़ा पाए, तो जो बहुत सारी चीजें हैं समवेयर उन्होंने उदाहरण भी दिए कि 3 पीढ़ियों से वाग वाले के जो प्रिंट को कर रहे हैं। और आई मीन इट्स सो नाइस टू नो एंड सी कि सब अपने पूरी तरह से उनको पता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, और ऐसे न जाने कितने होंगे। अब देश को ये जानने की आवश्यकता है, ये हमारी बहुत रिचनेस है, ये हमारी विरासत है। तो बहुत अच्छे उन्होंने भी बताया, जिसको हम निश्चित रूप से पोस्ट कोरोना जब हम करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्रीज बनाते समय ये सारी चीजें, ये तथ्य जो आप लोगों के सुझाव हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और आप हमारे यू विल बी ऑन बोर्ड, हम क्योंकि मुझे लगता है कि ये पहलू और ये पक्ष भी पूरे देश को पता चलना चाहिए, और उसका एकमात्र अच्छा और बिल्कुल सुलभ जो साधन माध्यम होगा वो डिजिटल होगा। तो डेफिनेटली, और मिस्टर मौर्य ने बहुत ही मैं समझती हूँ, मैं गांव की हूँ तो मैं जानती हूँ कि जो गांव वाला जो दिल है वो कैसा धड़कता है और कितना उसको अच्छा लगता है जब उसको मालूम होता है, पड़ता है कि क्या ये सारी चीजें जो उसने बचपन अपना जिया था गाँव में, उस तरह से फिर से उसको क्या दिखने वाला है, चीजें वैसी होने वाली है। तो शायद बहुत सारे जो परेशानियां हमने उठाई हैं इससे पोस्ट, और बहुत सारे हमने लर्निंग एक्सपीरियंस लिए हैं और हम बेहतर बने हैं, उसमें एक चीज ये भी हुई है कि शायद गांव गणतंत्र और ज्यादा मजबूत हो, और शायद वो गांव के जो हमारे जो हमारी लोक कथाएं और हमारे लोकगीत और लोक परंपराएं भूल गए हैं लोग, वो क्या फिर से ऐसे लोग एक्टिवेट कर पाएंगे जो उनके आसपास है और जिन्होंने उसको देखा है। शायद उसमें मौर्य जी का भी अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा कि उसको वो रिवाइव कर पाए। और मेरे ख्याल से जिस गांव में ये सांस्कृतिक संपन्नता होती है, जहाँ पे सब और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये कोरोना जाएगा, हम जीतेंगे और हम वैसे हो पाएंगे, तो वो संपन्नता है वो कभी विपन्न हो ही नहीं सकता वहां। तो वो रिचनेस जो कहीं मैं बात कर रही थी, हम दादी नानी से कहानियां सुनते थे और वो एक ऐसी स्टाइल हुआ करती थी कि जब वो कहानी सुनाती थी, और मुझे याद है अलाव के किनारे बैठ के रात के समय, तो अगर वो हमें डराना चाहे तो वो किसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज में और उसमें ऐसा आता था कि हम थर थर कांपने लगते थे। कहानी में इतने मॉड्यूलेशन होते थे, वो कहाँ गया? हमें वो भी इस तरह के ये जो घर घर में ये जो कलाकार थे और ये घर घर में जो कथाएं थी कहीं खो गई हैं। तो अब शायद ये हमें एक मौका दे रहा है इसको फिर से रिवाइव करने का। तो बहुत आभार कि ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है और हम सब की है, हम सब बहुत सकारात्मक सोच रहे हैं। हमारे नेतृत्व ने हमें सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचने के लिए तैयार कर दिया है। तो निश्चित रूप से गांव गणतंत्र और स्ट्रेंथन हो, तैयार हो, और कलाएं वहां की फिर से
जो छूट गई थी, जो शहर में लोग भाग के दौड़ते हुए चीजों को छोड़ आए थे, वो सारी चीजें जगह मैं बनारस की हूँ तो मुझे याद है वहां पे सड़कों पे सावन कजरी गाई जाती थी उन दौरान सावन में, और वो घर के बाहर रात को औरतें खाना बना के निकल आया करती थी, लड़कियां और सब घूम घूम के कजरी गाया करती थी। और फिर 1 महीने के बाद उसका समापन होता था, एक बड़ा रात जगह होता था और एक उत्सव होता था, और सब प्रतीक्षा सारी महिलाएं करती, वो महिलाओं के लिए होता था। लेकिन अब बहुत वो कहीं खोया हुआ सा था। मुझे लगता है कि जब रिवाइव होगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि सांस्कृतिक पक्ष जो है वो कितना हमारा सबल है और हमको कितना ताकतवर बनाता है। तो मैं आप सभी लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और हम सब ने उसको बहुत ध्यान से सुना, और मेरे ख्याल से जो हमारे श्रोता है कहीं ना कहीं वो भी उतने ही संवेदनशील हैं। तो सबने कुछ नए तरीके से देखा, और हम इसको बिल्कुल हमने हमारे रिपोर्टर जो है जो लिख रहे हैं वो सारी चीजों को लिख के वो रखेंगे, और निश्चित रूप से इस दिशा में हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे और हम करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा उत्तरदायित्व है, तो हम इसको करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार इतने सुंदर सुझाव देने के लिए, और निश्चित रूप से एक नया कुछ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आभार। मैं इस वेबिनार के अंत में सर्वप्रथम हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी का आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया इस वेबिनार को चेयर करने के लिए, और बहुत ही अच्छे सुझाव भी दिए जो कि हमारी जो भविष्य की योजनाएं रहेंगी उनमें सभी को इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा। उसके बाद मैं हमारे जो आज का एमिनेंट पैनल है, गौर पुजारी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, मौर्या जी हैं, मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन और आभार करता हूं कि आपने भी अपने घरों से ही हमारे साथ जुड़कर और विभिन्न प्रकार की समस्याएं, क्योंकि आप एक कलाकार के नाते, एक डायरेक्टर के नाते, एक थिएटर पर्सन, जर्नलिस्ट के नाते आम लोगों से जुड़े रहे हैं, आम लोगों से, कलाकारों से इंटरेक्टिव रहे हैं। तो आपके भी जो सुझाव थे वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही मूलभूत स्तर पर काफ़ी मदद करने वाले थे। उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे जो होस्ट हैं आज के NEGD, स्पेशली प्रिया शर्मा जी, जिन्होंने ये बहुत अच्छा मंच हमें उपलब्ध कराया, और आज हम इतने सारे हमारे दर्शकों से जुड़ सके आपके माध्यम से, आपका भी विशेष धन्यवाद। चूँकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के एड्रेस के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि फेसबुक CCRT न्यू दिल्ली टाइप करने से ही आप फेसबुक पेज पर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ अभी एक लाइव लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी 5:30 बजे से आयोजित किया गया है, और यूट्यूब पर जहाँ हम अपनी फिल्में और हमारे जो और रिकॉर्डिंग्स हैं, जहाँ हमारे जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, छात्रवृत्ति धारक कलाकार हैं, उनकी भी कार्यक्रमों को हम दिखा रहे हैं। तो उसका भी CCRT ऑफिशियल चैनल यूट्यूब, इसी को आप टाइप करके जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की प्रेजेंस ने, हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं की प्रेजेंस ने हमें इंस्पायर किया है कि अगली वेबिनार का हम समय भी बढ़ाएं और आपके अधिक से अधिक प्रश्नों को अपनी वेबिनार में शामिल कर सकें। धन्यवाद। आपसे शीघ्र मिलने की, फिर से मुलाकात की धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।